हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर जो है किंग्स, फार्मर एंड टाउन, अर्ली अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी देखा जाए तो कक्षा 12वीं का इतिहास का है। अध्याय जो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र दौड़ाएंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक लड़ी रहेगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रहेगा। हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे जो पॉइंट व्यू पे रहेगा और साथ में ये क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, kings, farmers and towns, early states and economics. That's important chapter here, class 12th CBSE NCERT history here. The next question arrive here, describe the verify the sources used for the reconstructing the history of the Gupta rulers. You know that's an important question. Describe the verify the sources here used for the reconstructing the history of the Gupta rulers. The Gupta rulers established a vast empire for centuries. That's important. The Gupta rulers is a vast empire in the 4th century which is constructed from the various sources here. And these sources explain in the following way. Let's see first here. First, as inscription are the written engraved on the hard surface like a stone, metal, etc. You know that inscription is written here like a surface, stone, metals. That's important sources here. And these are generally composed in a precise of king in a particular, and the stone is generally by the poets. That's important. That is generally composed by here poets on this period time. Let's see the example of Allahabad pillar inscription or Prayag of Parashastri, where is the composed of Sanskrit by the Hari Sen. The court poem of Samgupta in the passage of him. You know that is important. Allahabad pillar inscriptions are Prayag's Parashastris were composed by the Sanskrit by the Hari Sen. There is a poet of Samgupta is quote here. And coins are also is important source of reconstructing their history of the Gupta rulers, and that include element like scripts, image, and the contents of which they are found here. That's important. There is a inscription, image, and context here. Some of the most spectacular gold coin were issued by the Gupta rulers. You know that's an important point. Some of the most spectacular gold coins were used by the Gupta rulers, and this coin of facilitated long distance transactions from which their expansion of trade and commerce was now. That's important. Literature historian attempt to draw a factual information from the composition of Parashastris here. Know that is important. Literature historians attempt to draw factual information from the composition of Parashastris here. And those who composed this often treated
treated them a work of poetry and other than to the account that were literally true. Note that's important. Those who compose this often treat them a work of poetry rather than account that were literally true. And this varied in the passage of king and patron in a general. And thus historians have to constantly assess their statement made in the inscription to the judge and whether there is a true recital or exaggerations. That's important. And precisely they contribute to the prominently is reconstructing the histories of Gupta rulers. Example, Prayag Prasastis was composed in a Sanskrit from a Samudgupta time. That's important example of here. There is a example of Gupta ruler Prayaga Prasastis was composed in a Sanskrit for the Gupta Samudgupta time period. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चैप्टर राजा, किसान और नगर यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन आया है, गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयुक्त स्रोतों का संक्षिप्त हमने वर्णन करना है कि गुप्ता शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण, जो पुनर्निर्माण हुआ कि कौन कौन से प्रमुख स्रोत के रूप में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये सारी बातें आपके समक्ष पॉइंट व्यू प्रस्तुत हुआ है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और क्वेश्चन साफ है कि गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयुक्त स्रोतों का हमें संक्षेप में चर्चा करना है, संक्षेप में कि कौन कौन से जो है पुनर्निर्माण के लिए स्रोत थे। कहते हैं गुप्त शासकों ने 4वीं शताब्दी में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसका विभिन्न स्रोतों से पुनर्निर्माण किया गया। यानी देखा जाए तो गुप्ता शासक जो था 4वीं शताब्दी में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर जो है यहाँ पर खड़ा किया। और इन सब के बारे में हमें इनके स्रोतों के बारे में निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो शिलालेख जो है पत्थर, धातु आदि जैसे कठोर सतहों पर उकेरे गए हो लेख थे। यानी देखा जाए तो शिलालेख अगर हम सबसे पहली बात करें तो शिलालेख जो होते हैं पत्थर, धातु आदि जैसे कठोर सतहों पर उकेर के बनाए गए हैं, यानी उसको उभारा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पुराने समय में पत्थर और धातु जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे अपने विचार प्रकट करने के लिए, और उनको या तो छापा जाता था या उनको काट काट के जो है बनाई जाती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आम तौर पर कवियों द्वारा विशेष रूप से राजाओं और सामान्य रूप से संरक्षणों की प्रशंसा में लिखे गए थे। यानी एक बात तो साफ है कि उस समय जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी सब राजाओं के जो है उनके ही गुणगान में लिखे गए थे, और सारे जो भी राजा जिस राइटर को संरक्षण प्रदान करते थे वो उनकी ही विशेषताओं का गुणगान गाते थे। तो इसमें से आधी बातें जो होती है सच नहीं रहती है, क्योंकि जो भी किसी की प्रशंसा में लिखी गई हो और जो किसी को संरक्षण दे तो उसी के बारे में अच्छी बातें ही लिखी जाती है, उनकी बुराइयों को दूर रखी जाती है। तो ये साफ रहता है कि आमतौर पर कवियों द्वारा विशेष रूप से राजाओं और सामान्य रूप से संरक्षणों की प्रशंसा में ये सारी बातें लिखी जाती थी। यदि उदाहरण के स्वरूप हम देखें तो कहते हैं उदाहरण के लिए इलाहाबाद स्तंभ, जो आपको पता भी होगा कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी प्रशंसा में संस्कृत में की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, चाहे इलाहाबाद स्तंभ की हम शिलालेख की बात करें या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की बात करें, जो कि कहते हैं हरिसेन ने इसके समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा में संस्कृति शब्द में लिखी थी। इवन देखा जाए तो हमें सबसे अधिक इन्फॉर्मेशन जो है सिक्कों से प्राप्त होती है। कहते हैं सिक्कों जो है गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बना है, और ये किसी भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं सिक्के, क्योंकि इनमें लिपियां, चित्र और जिस संदर्भ में पाए जाते हैं जैसे तत्व कुछ ना कुछ शामिल होते ही होते हैं। कोई भी सिक्के हों, कोई भी लिपियां हों, कहते हैं उस संदर्भ में जिस समय ये बनाई गई थी, जिस समय ये निर्माण हुआ था, उसकी कोई ना कोई विशेषता नज़र आती है। जैसे आपको पता ही है कि गुप्ता का जो है सिक्कों में जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इवन कि बहुत से ऐसे चित्र हैं जिनमें इन सब बातों को काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, और वो सारे सिक्के में ही होते हैं। कहीं सिक्के में
उस समय की हालतों का वर्णन होती है। तो ये सिक्के जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सिक्कों में जो है लिपियाँ के साथ साथ चित्र भी पाए जाते हैं, जो उस समय काल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कुछ सबसे शानदार सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सोने के हमें अशर्फियाँ मिले हैं, सिक्के मिले हैं, वो सबसे अधिक सिक्के जो हैं गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे, वो सिक्के हमें अधिक प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों की लंबी दूरी को लेन देन की भी सुविधा भी मिलती थी, जिससे व्यापार और औद्योगिक के विस्तार का पता चलता है। यानी देखा जाए तो इतिहासकार ने इसकी जो है कई क्षेत्रों में ये सिक्कों को प्राप्त किया है। इससे ये पता चलता है कि इसका व्यापार जिन जिन क्षेत्रों में सिक्का हमें प्राप्त हुई है, उन क्षेत्रों में जो है व्यापार होती थी। और ये बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। सिक्के जो है हमें बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि इससे जो है किस क्षेत्र में व्यापार होती है, उस समय क्या बात, इस सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक हमें लेन देन के बारे में जो है पता चलता है। साहित्य इतिहासकारों ने प्रसंगति की रचना तथा तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य इतिहासकारों ने प्रसंगतियों की रचनाओं में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। जिन लोगों ने इसकी रचना किया है वो प्राय इन्हें कवि की कृतियाँ मानते थे, न कि कोई वृत्तांत जो विशिष्ट सत्य था। यानी देखा जाए तो देखिए, कोई भी रचना होती है तो कवि अपने जो है कहते हैं मन से ये बातों को लिखते हैं, उनमें कोई भी वृत्तांत में जो है सत्यता नहीं होती है। जिन लोगों ने इसकी रचना किया था वो सारे के सारे कवि वृत्ति के माने जाते थे। और कवि वृत्ति का मतलब होता है कवि का मन जो है चंचल होता है, वो किसी का भी कुछ भी रूप धारण कर लेता है, और कभी यहाँ रहता है तो कभी वहाँ रहता है। तो इसको हम सत्य घटना पर आधारित नहीं कह सकते। बहुत सी बातें ऐसी है जो कवियों के जो है मन गढ़ंत कहानी होती है, तो इन पर जो है पूरी तरह से जो है विश्वास करना संभव नहीं है। और ये सारे के सारे वृत्तांत जो कृतियाँ होती है वो सत्य पर आधारित नहीं होती है। कहते हैं ये सामान्य राजा और संरक्षक प्रशंसा में लिखे जाते हैं। ये जितने भी वृत्तांत होते हैं, जितने भी कृतियाँ होते हैं, सब के सब राजा या संरक्षक के प्रयासों में प्रशंसा में लिखी गई बातें होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार इतिहासकारों के शिलालेखों में दिए गए बयानों का लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह सच है या अतिशयोक्तिपूर्ण है। यानी देखा जाए तो बहुत से इतिहासकार में इसी बात पे जो है बात विवाद हो जाती है कि ये सत्य है कि असत्य है, क्योंकि जो भी हमें जानकारी मिली है या तो कवियों के लिखी गई कृतियाँ थी या बहुत सी ऐसी बातें थी जो कवियों ने संरक्षक की प्रशंसा में लिखी थी। तो इसकी बातों को जो है हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, उसकी गहराइयों को जान नहीं सकते हैं। हमें कई कई जगहों पर जिन राजाओं को कवियों ने अच्छा बताया है, काफ़ी अच्छा उसके शासन को बताया है, तो कहीं कहीं दूसरे लेखों से हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक बात तो साफ हो जाता है कि जिनको राजाओं ने संरक्षण किया है, उन्होंने उन कवियों ने राजा के लिए विशेष महत्व वाली बातों को ही महत्वता दी है। प्रशंसा ने गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रमुख योगदान देते हैं। प्रस्तुतियों जो है गुप्त शासकों के इतिहास में पुनर्निर्माण में योगदान देते हैं। जैसे प्रयाग स्मृति की रचना समुद्रगुप्त के लिए संस्कृति में की गई थी, और उसमें सारी बातों को जो है समुद्रगुप्त के विषय में लिखी गई थी और उसकी प्रशंसा की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। दोस्तों ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने 11 पॉइंटों पे बात किया है। 11 पॉइंट में से अगर आप 10वीं पॉइंट 8वीं पॉइंट याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम के लिए जो है 5-6 मार्क्स में क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो क्वेश्चनों को समझना, विचार करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, और साथ में जितना हो सके शेयर करने की भावना भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा उतना ही दूसरे बच्चों का केयर भी होगा। और शेयर केयर काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता, यूट्यूब से लिंक कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप पर लगा देना होता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाके आपको आगे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। और कहते हैं अगर समझ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुण जो है, शब्द यहाँ दिख रहे हैं आपके समक्ष और पॉइंट दिख रहे हैं। अगर इसमें से 10 पॉइंट भी, अगर 8 पॉइंट भी आप याद कर लेते हो आप स्वयं भी, फिर भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। और ये सब तब रहेगा जब चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाठी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।